हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਵੱਲ। ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਘਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਮੱਕੜਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਆਊਗਾ। ਰੱਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੰਟਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ। ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਰੱਲੇ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਰੱਲੇ ਤੋਂ ਮਾਖਾ ਚਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਘਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਰੂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਸੰਧੂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੀਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸੰਧੂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਉਧਰ ਘਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ 18/11/2023 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਘਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਂਟ ਚਮਕਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਂਟ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰੇਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਘਮੱਕੜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਲ ਬਾਕਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ। ਅਸਲੀ ਚਮਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਮੱਕੜ ਸਾਥੀਓ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੈਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵਰੈਸਟ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ रूबरू हो रहे हैं मीनू काली रमन जी, जो दुनिया की सब तो उच्ची चोटी एवरेस्ट नू सर किया उन्होंने। तो इन्हां दे बारे जानांगे, इन्हां दीयां प्राप्तियां बारे जानांगे। तो सानू बड़ी खुशी है, असी सारा घमक्कड़ी परिवार बड़ा ही घमक्कड़नामा फैमिली बड़ा माण महसूस कर रही है भी अज ये साडे विहड़े विच आए आ। ते हुण इन्हां दा इंट्रोडक्शन करदे आ हिंदी में। हाँ जी, मीनू काली रमन जी, मतलब आप तो हरियाणवी में बोल सकूं क्या? समझ में आती है हरियाणवी? हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं पंजाब की पावन धरती को, मेरे बड़े भाई मेरे सामने बैठे हों, सिर झुका के सबको नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी छोटी बहन मीनू काली रमन, भाई ने बता ही दिया, जो हाल फिलहाल ही में माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और माउंट लोहोत्से, दुनिया की चौथी ऊंची चोटी, दोनों को एक साथ फतेह करने का 60 घंटे में रिकॉर्ड बनाने का मैंने काम किया। दोनों चोटियों को 60 घंटे में फतेह करने वाली इंडिया की एकमात्र बेटी हूं मैं। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने हमें इस अवसर पर बुलाया, आपसे रूबरू हुई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बड़े भाइयों से, काश छोटे भी होंगे कुछ, तो आपकी बातें सुनने का मुझे मौका मिला और आपके सामने मेरे कुछ विचार रखने का भी मुझे मौका आपने दिया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मीनू जी, आप अपने गांव के बारे में थोड़ा बताएंगे? आप मतलब किस गांव से बिलोंग करते हो? अपने मेरा एक छोटा सा गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। और मेरे हरियाणा में एक कहावत भी है कि छोरिया ने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। जैसे भाई ने बताया था कि पहाड़ से कंपेयर करते हैं कि पहाड़ तोड़ दिया छोरिया ने। लड़कियों को खास करके चूल्हा चौका तक ही सीमित रहने की परमिशन हमें दी जाती है। मोस्टली परिवार ऐसे हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी है। लेकिन मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई थी स्टार्टिंग में, तो मेरे पेरेंट्स को मनाने में। एक तो मेरा गेम इतना ज़्यादा रिस्की है, दूसरा पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसके लिए हमें पेशेंस, स्टेमिना और माइंड स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा माइंड स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। कहते हैं ना, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने अपनी 2 उंगलियां खो दी फ्रोस्ट बाइट में, जिसका रिकवरी का कोई चांस नहीं था। और मेरे कुछ साथी लोग भी थे जिनकी डेथ हुई है। 23 साल का एक लड़का था ऑस्ट्रेलिया से, मेरी ही टीम में, उनकी डेथ होगी समिट के बाद, कैंप 4 पे आते टाइम डेथ हुई। और मेरी आंखों के सामने कितनी डेथ पड़ी हुई थी, कितनी लाशें मेरे सामने थी, दाएं बाएं सामने। एक बार तो मेरे को भी लगा क्या मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गई। और अपने माँ बाप की मैं एक बेटी हूँ, एक भाई है मेरा, तो पीछे मेरे को लगा भी था कि काफ़ी बातें सुनने को मिलेंगी मेरे पेरेंट्स को, मुझे कुछ हो गया तो, कि छोरी थी, बहन जोगी हो रही थी, ब्याही को नहीं, शादी को नहीं करी, ऐसा करके। शायद आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। आ रहा है हरियाणा। ओके। तो मेरे साथ इंडिया वासियों की, अपने देशवासियों की बहुत ज़्यादा दुआएं थी, इसलिए मैं शायद सबमिट कर पाई। आप सब लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद था, विल पावर थी और मेरी मेहनत भी थी। उसके पीछे मेरे भाई, मेरे पापा बैकबोन बन के मेरे पीछे खड़े हुए थे। और मेरी मम्मी ने तो खासकर, जब मैं एवरेस्ट सबमिट करने गई 2 महीने से खाना नहीं खाया। मैं गई उससे 1 हफ्ता पहले मेरी मम्मी ने खाना खाना छोड़ दिया था। इट मीन्स अन्न नहीं खाया था, कुछ भी लिक्विड वगैरह तो लेते रहे थे वो भी। कि जब मेरी बेटी हाथ तिरंगा फहरा के आएगी इंडिया का आउट ऑफ कंट्री में, उसी दिन मैं खाना खाऊंगी। सुबह 6:25 पे मेरी मम्मी को पता चला कि मेरी बेटी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया। उसी दिन गांव वालों ने और न्यूज़पेपर वालों की तो लाइन ही लगी घर पे। जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम एवरेस्ट के लिए, मम्मी ने हाथ पे तिरंगा रख दिया था कि ले बेटी, या तो लहरा के आना या फिर इसके अंदर लिपट के आना। वो मेरे लिए इतना एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि मेरी माँ ने आज इतनी बड़ी बात मेरे लिए कह दी। मम्मी को ये था अगर मैं ये बात कहूँगी तो शायद ये वापस आ जाए ही ना। लेकिन मेरा
हौसला इतना था, मेरे को देश के लिए कुछ अलग करना था, अपने इंडिया की ऑल वर्ल्ड में एक अलग से पहचान बनाना मेरा जुनून था, मेरा सपना था। अपने देश को एक अलग पहचान बना के मैं आई। 60 घंटे में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से का झंडा मैं पूरे वर्ल्ड में फहरा के आई। बाकी ऐसी काफी बातें हैं, मैं ज्यादा तो शायद क्या पता शेयर ना भी कर पाऊं। बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें नेगेटिव भी सोचने को मजबूर कर देते हैं और पॉजिटिव भी। ये गेम कौन कौन करना चाहता है एवरेस्ट? बाकी क्यों नहीं करना चाह रहे? नहीं, सभी के तो हाथ ऊपर नहीं हुए। सबसे होगा भी नहीं। जिन्होंने हाथ ऊपर किए वो एवरेस्ट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने नहीं किए वो क्यों नहीं करना चाह रहे? कोई भी एक रीजन बता दो। इंटरेस्ट की बात है, बिल्कुल सही बात है। और बाकी डरने वाली कौन सी बात है इसमें? ये बता दो भाई, हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, कई कारण है, पैसे की है, लेकिन जब हिम्मत हो ना, भगवान पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर देते हैं। पैसे तो हो जाते हैं। हौसले उसके लिए रखने पड़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है अपने इंडिया वासियों को। मेरे को भी काफी स्पॉन्सरशिप मिली थी, कमिश्नर मैडम ने किया था या फिर डीसी साहब ने मेरे को स्पॉन्सरशिप दी थी। उसके लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि रजाई में या बेड पे पड़े पड़े हमें भगवान बा के बोलेंगे ले बेटा तू एवरेस्ट कर ला, तेरे पीछे 50 लाख मैंने डाल दिया अकाउंट में। ये तो होता नहीं होगा। या किसी के आए हैं ऐसे भी? नहीं ऐसे भगवान जी बोले हैं कभी? नहीं बोले। बाकी किसी के मन में ऐसा पॉइंट हो कि मुझसे कुछ पूछना है, खाने पीने से रिगार्डिंग है या फिर किसी भी पहनने की। हाँ जी दादा, मैं वेज हूँ, प्योर वेज। सुबह उठ के मैं मूंग, भीगा हुआ मूंग, चना, बादाम और सोयाबीन लेती हूँ। उसके बाद एक मेरा नारियल पानी का होता है, परमानेंट है। 9 से 10 बजे मैं जिम से आती हूँ तो 1 लीटर मेरा दूध होता है। चपाती में 1 या 2 कभी कभार खाती हूँ, या फिर रात को 1-2 चपाती, बीच में फ्रूट्स या फिर जूस वगैरह। एक मैंने किताब पढ़ी थी जहाँ हर पेज में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले को 1 पेज लिखने के लिए दिया गया था। हाँ जी। अगर आपको 2 लाइनों में पूछा जाए कि अगर आप टॉप पे खड़ी हैं, उस मोमेंट 2, 4, 5 मिनट आपको क्या महसूस हुआ, उसको बयान करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है बाबा। टॉप ऑफ द वर्ल्ड खड़ा होके मेरे को कैसा फील हुआ? दुनिया की छत पे खड़ी हूँ और सारे मेरे नीचे हैं। नीचे तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भी जमीन से ही हूँ, जमीन से ही जुड़ी हूँ, लेकिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाके मेरे को इतना जरूर फील हुआ कि काश यहाँ पे मेरे माँ बाप होते, मैं उनके गले लग के एक बार तो जरूर रोती। वो खुशी के आंसू कि जो ड्रीम मेरे पापा ने मेरे लिए देखा था और जो ड्रीम मेरे दुनिया वालों ने, देश वालों ने देखा था कि छोरी कौन सी पहाड़ तोड़ लेगी, वो आज मैंने तोड़ के दिखा दिया। करने के बाद एवरेस्ट जीत लिया आपने, बिल्कुल। उसके बाद कुछ ना कुछ तो खोना भी पड़ा होगा। 2 उंगलियां तो है, विक्ट्री का साइन अभी भी बनता है। हाँ जी। फिर भी जिंदगी में कुछ तो नाप तोल ऊपर नीचे हो गया होगा। नाप तोल ऊपर नीचे रूटीन होती है वैसे एक आम ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, हाँ जैसे जी। पढ़ना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बढ़ना है। देखो अगर कुछ भी ना करती तो शायद घर वाले 2 साल पहले ही शादी करके बच्चों वाली भी हो जाती, क्या पता मैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे भी घूमते, लेकिन कुछ हौसला और घर वालों का सपोर्ट था तो अभी तक कुंवारी आपके सामने बैचलर घूम रही हूँ। ठीक है, आप इतना आजाद मैं घूम रही हूँ, कहीं पे भी पंजाब जा रही हूँ तब भी पूछने की परमिशन की जरूरत नहीं मेरे को। पेरेंट्स को एक बार ये बताना जरूर पड़ता है कि पापा मैं वहाँ जा रही हूँ। आपने इन सबको बोला कि हाथ खड़े करो जो एवरेस्ट जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर ये सब हाथ खड़ा कर देते तो ये इन्होंने डरते हुए नहीं किया कि कहीं 5वां घुमक्कड़नामा एवरेस्ट भी ना रख ले। ठीक है जी, अब बाकी क्वेश्चन कोई और पूछे। सही है सही है सही है। किस तरह की थी ਤੁਸੀਂ एवरेस्ट ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किस तरह तैयारी की थी? मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से ही रहा है। मेरा नेशनल ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड है। ठीक है। और 4 से 5 घंटे मेरा जिम का वर्कआउट था। उसके अलावा मेरी 10 किलोमीटर रनिंग थी पर डे की। 3 बजे उठ के रनिंग पे मेरे पापा जाते थे मेरे साथ, सिर्फ ये देखने के लिए कि बेटी रनिंग कर सकती है, एवरेस्ट कर सकती है या नहीं। फिर उनको लगा कि हाँ हार तो मानने वाली है नहीं,
अब तो हमें ही साथ में लगना पड़ेगा इसके। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े होंगे, कुछ त्याग करना पड़े होगा। बहुत ज्यादा। आज इस मुकाम पर पहुंच के क्या आपको कोई रेग्रेट है कि आपने बहुत त्याग किए? देखो कोई मैंने नहीं ठीक है। बिल्कुल है, आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है मेरे से। मैंने 3 साल कोई भी त्योहार अपने पेरेंट्स के साथ मना के नहीं देखा। और हरियाणा में तो एक सावन महीने में एक कोथली आती है, शायद आपके पंजाब में भी आती होगी, सिंधारा जिसको बोलते हैं। त्योहार पे वो, हाँ, मायके वाले वो बेटी के घर भेजते हैं। वो मैंने 3 साल से खा के नहीं देखा। 3 साल से मेरी कोई दिवाली नहीं बनी, कोई भी त्योहार नहीं बना। मेरा ये था जिस दिन मेरा एवरेस्ट हो जाएगा उसी दिन मैं सारे त्योहार एक साथ मना लूंगी। और वो भी मैंने टॉप पे मनाए थे। वो खुशी ही इतनी थी, सारे त्योहार मेरे ऑटोमेटिक मन गए थे वहां पे। बाकी और किसी का? व्हाट अबाउट फंड्स? क्योंकि ये जो एक्सपीडिशन है ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कुछ 10-20 हज़ार की गेम तो है नहीं जी। लाखों की बात है। तो उसके जो एक्सपीडिशन शुरू होने से लेकर उसको कंप्लीट होने तक जो खर्चा हुआ उसके रिगार्डिंग, और उसकी तैयारी पे जो कुछ लग रहा है उसके लिए जो आपके सोर्स हैं, तो उसमें मतलब जो आपको जो स्पॉन्सरशिप है वो मतलब उसके बारे में मैं जानना चाहता था कि इसको कोई भी आदमी अगर करना चाहे, जितने आदमियों ने हाथ उठाया है, तो उनको कंप्लीट जानकारी मिल सके कि इसके लिए क्या क्या अरेंज करना होगा और कितने पैसों की ये गेम है। देखो, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप हम किससे ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं? यूँ तो है कोई कि नॉर्मल आदमी बर्थ हुआ और कि इसे स्पॉन्सरशिप दे दो, हमें कुछ चाहिए, कुछ करना है, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ तो हमें करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ताकि लोगों के सामने हमारी एक इमेज बनी हो, न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी चैनल पे हमारा उभरा हुआ चेहरा आना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, लेकिन 2-4 लाख रुपए आपको खुद को एक बार खर्च करने पड़ेंगे। छोटे मोटे एक्सपीडिशन है, अपना जिम का वर्कआउट है, वो सोशल मीडिया पे आप डालोगे तभी आप एक उभरता हुआ चेहरा दुनिया के सामने आओगे कि हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है अपने फील्ड के लिए। वो करेंगे तब एक प्रोफाइल तैयार होती है कि मैंने इस फील्ड में ये अपना काम किया है। अभी मैंने छोटे मोटे एक्सपीडिशन लाइक माउंट फ्रेंडशिप की है, माउंट यूनम की है, या फिर माउंट किलिमंजारो की है। उसको देखते हुए कोई भी हम किसी भी प्राइवेट और नॉन प्राइवेट कंपनी को ले सकते हैं। ये अंडर द CSR आता है, जो CSR फंड होता है अपना, उसमें आता है। तो CSR किसे दिया जाता है? एक स्पोर्ट्स पर्सन के रिगार्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। या तो हमारे देश का कोई भी कुछ भी हुनर हो, चाहे सिंगिंग में है, डांसिंग में है, या फिर स्पोर्ट्स में है, उसको कहीं पे भी मना नहीं कर सकता कोई भी। अगर जितना भी CSR फंड उसका बचता है ईयर का, वो अप्रैल या फिर लास्ट मई में निकाल देते हैं पूरा CSR। कोशिश करें हम दिसंबर से पहले लेने की, आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं तो सिर्फ हमारी मेहनत और कंटिन्यूटी में आती हैं। किसी भी काम को करने में हमें 6 महीने 6 साल तक भी लग जाते हैं, लेकिन हम हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। सिर्फ 6 दिन में भी कि हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला, सिर्फ 6 दिन हमें लगे हुए हो गए, तब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी आपको। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਰਮਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ? सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊंगी इस बात पे, एवरेस्ट करने से पहले मेरे को मेरे पापा के नाम से जानते थे और अभी मेरे नाम से मेरे फादर साहब को जानते हैं। सबसे बड़ा और सबसे शायद अच्छा पॉइंट्स मेरे लिए यही रहा है। एक बेटा या बेटी के लिए उसके पेरेंट्स को उनके नाम से जानना बहुत बड़ी बात है। और क्वेश्चंस किसी के मन में? मैडम, आपका नेक्स्ट प्लान कौन सा है? नेक्स्ट प्लान मेरा 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीपों को करना है मेरे को। मैं खुद हूँ। किसी का भी सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसके बाद पेरेंट्स होते हैं।
कोई भी आइडल हमारा अपने सामने रह जाए और हम रिजाई से ही ना निकलें तो आइडल क्या करेगा। हाँ जी दीदी, पहले तो मेरे आपको आपकी जो हरियाणवी है ना मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कोई हरियाणवी में बोलता है, तो मैं कभी कभार खुद भी बोलने लग जाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है हरियाणा से। थैंक यू। ये मेरी वाइफ आई है साथ में। इनका ये क्वेश्चन है कि माइंड की पावर, आपने जैसे हम कोई भी काम करते हैं पहले तो लगता है कि ये काम बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल, डराते हैं, डर लगता है ना कि बंदा नेगेटिव हो जाता है। आपने बड़ा बड़ा काम किया, आपने ऐसा काम कर दिखाया कि जो बंदा सोच के भी एक बार सोचता भी नहीं है, मेरे जैसा तो सोचता भी नहीं है, ऐसे हाथ तो खड़ा कर देता है मगर सोचता भी नहीं है। आपने माइंड को कैसे सेट किया, नेगेटिव हुआ तब कैसे सेट किया, नेगेटिव तो होता ही होगा। तो ये क्वेश्चन मेरी वाइफ का है दरअसल। मैं माफी चाहूंगी, तो ये प्रश्न इन्होंने क्यों नहीं पूछा? पहली बार आए हैं जी घुसकड़ मिलनी में, थोड़ा शर्मा रहे हैं। स्टेज पे कभी नहीं बोली। एवरेस्ट करने के बाद मैं एक दिन भी घर पे नहीं रही। मेरे को डेली प्रोग्राम में जाना पड़ता है। एज मेरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 375 स्कूल हैं। हर एक स्कूल में मेरे को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने हैं, क्योंकि मैं ताइक्वांडो की प्लेयर रही हूँ। और उसके दिन बाद मेरे को स्पीच का भी मौका मिलता है। मैं बोल नहीं पाती अच्छे से, सब सच बता रही हूँ, लेकिन मेरे फील्ड का मैं योद्धा हूँ, इतना पता है। नहीं, एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि मैं ना साइकिलिंग करती हूँ। हाँ जी। तो मैं जाना चाहती हूँ, जैसे लॉन्ग टूर पर जाना चाहती हूँ, तो कुछ घर की जिम्मेदारी हुई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो जो माइंड है ना वो नेगेटिव करता है, तो वो विल पावर नहीं बन पाती। तो यही क्वेश्चन था, इससे कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बाकी सब तो ठीक है। आप ज्यादा बोलते हो या कम? ठीक है, ठीक ठाक बोलते हो। कभी भी अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे कभी कभार गुस्से में बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में बोल रहे हो, तो आप चुप रह के उनकी बातें अच्छे से सुनिएगा। तब जो आपकी एनर्जी आप बोलने में वेस्ट करते थे वो सुनने में दिमाग जाएगा कि हमने कहाँ पे इसने गलती की, वो आगे से ना हो। या फिर हम कई बार हम बोलते हैं, मेरी फैमिली में भी होते हैं ये, मेरे खैर मैं मैरिड तो नहीं हूँ लेकिन भाई के साथ मेरी बहुत होती है। वो बोलता है तू ही बेके बनगी। हरियाणवी में कहावत है बहुत अच्छी, तू ही बेके बनगी। तो मेरे पापा कहते हैं तू जो सोच भी नहीं सकता वो ईब तो पहला बनगी, है ना। देखो जो एनर्जी जो हमारा स्टेमिना, आदमी तो फिर भी नशा कर रहे हैं, औरतें किस बात का नशा कर रहे हैं। लंग्स में जान चाहिए ऑक्सीजन भरने की, कितनी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन भरने की, है ना। आदमी तो फिर भी ड्रिंक कर लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, जो रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ। और नशा मुक्ति मुहिम से मैं जुड़ी हुई हूँ। मिलेट्स वर्ष को मैंने माउंट एवरेस्ट पे डेडिकेट किया है। 2023 की सबसे बड़ी थीम थी प्रधानमंत्री की, मिलेट्स वर्ष, उसको मैंने डेडिकेट किया है। तो नशा मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, करते रहिए कोई बात नहीं, लेकिन नशा ऐसा करो जो कभी छोड़ना ना पड़े। या तो करो ही ना, और करो तो ऐसा करो कि कभी ना छोड़ो, और वो है सिर्फ कामयाबी का, मेहनत का नशा। हमारे हरियाणा में तो एक कहावत है कि हम धाकड़ किसको मानते हैं। दंगल मूवी देखी है? धाकड़ के है उसमें, कोई बताएगा? सूट बूट पहन के बहुत अच्छी महंगी वाली गाड़ी लेके आ गया, वही धाकड़ है। अच्छे गोगल्स लगाया है, वही धाकड़ है। तो आप मेरे सामने बुजुर्ग थोड़े से एज्ड भी हैं, सबको तो मैं ये बातें नहीं कह रही, लेकिन छोटे छोटे यंग एज के जो भाई बैठे हैं उनको मैं जरूर कहूंगी। मैं धाकड़ उसको मानती हूँ जो सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करता है। उनका आदर, उनका मान, उनका सम्मान और उनकी पगड़ी को हमेशा सिर पर बनाए रखता है, मैं उसको धाकड़ मानती हूँ। मेरी नजरों में बड़ा या छोटा कोई नहीं है, कोई भी कास्टिज्म पे मैं नहीं जाती। सभी कास्ट अपना एक ही धर्म है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। बाकी और किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो। ब्लैक पीक वाले भाई, मेरा बड़ा भाई सुखविंदर सिंह गिल ये कह रहे थे मैं कभी माइक में बोला नहीं, बोली तो मैं भी नहीं भाई कदे। खड़ा हो जा प्लीज भाई, अपनी बहन के लिए एक बार खड़ा हो जा, थोड़ा सा तो बोल दो भाई।
ये होते हैं भाई, बहनों की भी टांगे खींचते हैं पीछे। अभी भी मैं आज आई, पता है मेरे को क्या बोल रहे थे? मेरे को एक्चुअली कल आना था, और ये नुपी भाई बैठे आगे, सुखी भाई बैठे, एक हरजिंदर भाई है, और एक कौन से भाई हैं वो पतले से जो हवा में फूक मारते तब भी उठ जाए, वो पीछे बैठे खड़े हैं, गिरी भाई। ये बोले तू सूट बूट पहन के आ गई, इतना जाडा, इतनी मतलब पूरी धो दी मेरी। क्या करे नहीं बेबे का मजाक करो, टांग खींचना होया करे। तू लोअर टी शर्ट मान दी, इतनी गर्मी हो रही। मैं बोली मैं अच्छी दिखना, और मैंने एवरेस्ट का जो काम किया उससे तम जड़ो हो। मैं यो काम को नहीं करूँ, रहते में तो तमने करना पड़ेगा। इन्हें कसर तो कुछ कौन छोड़ी। फिर इनके हौसले थे मेरे साथ, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये चारों भाई मेरे को। आपके पंजाब से ही हैं। अपनी छोटी बहन, पता नहीं एक ही मुलाकात में क्यों ऐसा रिश्ता बन जाता है भाई बहन का, और जो मतलब घर तक के रिलेशन हो गए, घर पे आना जाना बहुत ही अच्छा लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जाते हैं, अपनापन होता है। और हरियाणा पंजाब तो वैसे भी पेप्सू के नाम से शायद पहले जाना जाता था, एक ही था ये तो। अपनी एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई स्कूल से लेके थोड़ा सा। मेरी स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल में रही है, और मेरा कॉलेज भी गवर्नमेंट है। आपके पटियाला से मेरी एमपीएड चली हुई है, अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाँ जी, कर रहे हैं अभी एमपीएड फर्स्ट ईयर चल रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, पटियाला से, मैं पटियाला का रहने वाला हूँ इसलिए। ओके, मिलेंगे सर कभी जरूर, पटियाला आऊंगी। अब क्लासेस चल नहीं रही? चल रही हैं, पर मेरे को छूट है। यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं एक छोटा सा लोगो लेके जाओ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बाकी तेरे लिए हम सब कर देंगे। तो मीनू जी, आप एक चीज़ बताइए भी, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था अभी एवरेस्ट कौन कौन चढ़ना चाहता है ना, तो इतने बड़े पंडाल में भी उतने लोगों के हाथ नहीं खड़े हुए, तो आपके मन में ये कैसे मतलब जज्बा या ये प्रेरणा आई भी मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है? मतलब क्योंकि हम किसी भी पर्सन को जब देखते हैं तो हम उसकी प्राप्तियों को सिर्फ देख लेते हैं जी एवरेस्ट चढ़ा है, लेकिन उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है या उसकी मेहनत है या जो जज्बा है या पैशन है वो हम समझ नहीं पाते। तो मैं चाहूँगा भी आप वो हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में, मतलब आपके मन में कैसे वो प्रेरणा आई भी? देखो एवरेस्ट हर किसी का सपने में भी कोई नहीं सोचता। 2021 में मेरे भाई की शादी हुई थी, जो मेरा रियल भाई है, तो उसी दौरान घर वालों ने बना लिया था कि लड़की की भी शादी करनी है, साथ में दोनों बहन भाई की शादी करेंगे और हमारा भी खर्चा बच जाएगा। सभी पेरेंट्स सोचते हैं अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों की शायद एक साथ हो जाए, 1-2 साल का गैप है तो उस दौरान मैंने बहुत सारी झगड़े भी किए थे अपने पेरेंट्स के साथ कि नहीं, मेरे को शादी में ही अगर रहना था तो 8वीं 10वीं करते ही कर देते, क्यों पढ़ाई में आगे, कोई तुक ही नहीं बनता। नेशनल में मेरा गोल्ड है तो मैं क्यों खेल ली, क्यों मैंने अपने हार्ट तुड़वाए हैं, अपना मतलब पूरा करियर मैं दाव पे लगा रही हूँ कि ताइक्वांडो तो एक ऐसा गेम है, पूरा फेस खराब हो जाता है, किक लगी वहीं पे नाक भी टेढ़ी मेढ़ी, पूरा फेस का शेड्यूल मतलब वो बदल जाता है उसमें। तो घर वालों ने मानना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। जब मेरा न्यूज़पेपर में आया, घर वालों से एक टाइम ऐसा था मेरे लिए भी, सच बता रही हूँ, मेरा नेशनल में गोल्ड आया और वो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने छिपा ली, कहीं मेरे पेरेंट्स को पता चले और वो मुझे डांटे, गुस्सा करें या फिर कि छोरी है बिना बताए खेल रही है। हालांकि ऐसा उस टाइम पे मेरे साथ मेरा खुद की थिंकिंग थी, लेकिन जब भी पेरेंट्स ने पता चला, प्रिंसिपल सर ने मेरे को पापा को बुलाया, बहुत अच्छा उनको फील हुआ कि हमारी बेटी का नेशनल में गोल्ड है और हमें पता तक नहीं। वहाँ से मेरी जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया था। फिर मैंने मेरा एक हैंडीकैप्ड है एकता भ्याण, जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि हमारे एक देहात एरिया में ये कहावत है कि छोरियां ने पहाड़ के सारी चूल्हा चौका का करें तो हमने के पहाड़ तोड़ दिया, छोरियां पर किसी पर पहाड़ कौन टूटा कर दा, मतलब कुछ भी नया काम कर देना है कि माँ मैंने यो कर दिया, बोली के नारा है पहाड़ तोड़ दिया। मैंने सोचा पहाड़ को टूटा करे तोड़ के ही दिखाना है। तो आपने वो सचमुच पहाड़ को तोड़कर दिखा दिया। देखो पहाड़ को तोड़ा तो नहीं, लेकिन छू के मैंने जरूर दिखा दिया। तो कहावत है, तो वही बात हो गई। हाँ जी, कहावत है, तो कहावत है ना। देखो लड़कियां भी किसी भी फील्ड में कम नहीं है। मैं एक ऐसा पहला पंडाल जो देख रही हूँ जिसमें बॉयज की संख्या ज्यादा है, लड़कियां तो शायद ही कहीं कहीं नजर आ रही है, 2-3 होंगी मुश्किल से।
नहीं ऐसा नहीं है, पटियाला यूनिवर्सिटी में लड़कियां ज्यादा लड़के कम हैं। वो तो हर फील्ड में है, मैंने ये बोला सिर्फ इसको छोड़ के। अभी तो जहाज लड़कियां उड़ा रही हैं, चंद्रयान पे गई हैं, वहाँ पे लड़कियों का हाथ है किसी भी फील्ड में, और उनको भी सक्सेस बनाने का काम सिर्फ आप लोगों ने किया है। अगर औरत आगे जा रही है तो उसके पीछे मर्द का हाथ होता है। ये कहते हैं ना कि मर्द कुछ भी अच्छा काम करता है बहुत अच्छा, उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अपोजिट है ये दोनों। अगर आदमी कामयाब हो रहा है तो औरत का कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है उसके पास। मैं कामयाब हुई हूँ तो मेरे पेरेंट्स का है। जैसे किसी मतलब लंबे ट्रैक पर या हाइट ज़्यादा हो जहाँ पे वहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते हैं, भी कई बार हम पूरी मेहनत के बावजूद टूट जाते हैं, जहाँ बिखर जाते हैं, भी नहीं अब मैं इससे आगे नहीं कर सकता, या अपना बियॉन्ड लिमिट जब आप अपनी कोशिश करते हैं। तो कभी आपको भी ऐसा मतलब मान लो एवरेस्ट चढ़ते समय कुछ ऐसी दिक्कत आई हो और आपने उसको कैसे मतलब फेस करके उससे कैसे निकले, मतलब आप ये कैसा संदेशा देना चाहते हो भी अगर आप किसी ज़िंदगी में भी या किसी मुकाम पे या किसी ट्रैक पे लगा लो भी हम उस सिचुएशन में फंस जाएं या उस फेस करें उसको, तो उससे कैसे निकले, मेंटली प्रेपरेशन या जो भी मतलब आपकी वो बताइए आप इसमें। देखो फिजिकली पे तो मैं बाद में आऊंगी, पहले मेंटली प्रिपरेशन हमें तैयारी करनी पड़ती है, बहुत जरूरी है। हम अभी उठ के कोई काम शुरू कर दिया आज के काम को शुरू करने से पहले कल हमें सोचना पड़ता है कि वहां जाना है, कौन सी ड्रेस डालनी है हमने, या कौन सा काम है, कितने बजे स्टार्ट करना है। अगर जो बंदा पहले वाले दिन उसको पूरी प्रिपरेशन प्री प्लान करके चलेगा वही सक्सेस होगा। मान के चलो हम सक्सेस नहीं भी हो रहे, एक बार मैं ताइक्वांडो में मेरा सिर्फ नेशनल पार्टिसिपेट हो पाया था, मैं 2018 की बात है, मैं जीत नहीं पाई थी। उसके बाद मेरे कोच थे एक, उसने बहुत अच्छी बात बताई थी कि बेटा तू सबसे बड़ी योद्धा है। मैंने कहा सर कैसे, मैं तो हार गई, आज के बाद मेरा ये फील्ड खत्म हो गया, मैं टूट चुकी हूँ इस फील्ड में। कहता नहीं, यही तो सबसे बड़ी हार है, अगर तू आज हार गई तो कल की उम्मीद मत करना तू जीतेगी, अगर तू कोशिश ही ना करेगी तो जीतेगी कैसे। उसी काम पे सेम तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन दुगनी ताकत के साथ, हार के बाद दुगनी ताकत के साथ उसी फील्ड में आना और कंटिन्यू लगे रहना सबसे बड़ी जीत है। सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। बिल्कुल। मेरा एवरेस्ट का सपना तो कुछ ऐसा ही था। 3 महीने पहले मेरे को रात को नींद नहीं आई थी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सूझ के पापा कहते क्या दिक्कत है, बता भी नहीं रही, लेकिन मैं बताऊं किसको। मेरे को नींद आएगी तो सिर्फ टॉप करने के बाद ही आएगी। ऊपर से प्रॉब्लम मेरी ये थी कि पैसे का भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा मेरा, मतलब पता नहीं किस्मत ने कितना अच्छा साथ दिया मेरा। पापा ने तो खैर बोल ही दिया था कि जो होगा भगवान पे छोड़ रहा हूँ बेटा, तेरे लिए मैं मेरा 1 किला जमीन का है वो भी डिगा दूंगा, बेच दूंगा मतलब। लेकिन भगवान ने सुना कि ना तो जमीन दिगानी पड़ी मेरे फादर साहब ने, और स्पॉन्सरशिप मुझे अच्छा मिला। वहाँ की जो कमिश्नर मैडम है या फिर डिप्टी कमिश्नर हैं, बहुत अच्छा सहयोग किया, और हर प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट करते हैं वो। और महिलाओं से रिलेटेड कोई ब्रांड एम्बेसडर का भी चला हुआ है, ऑल हरियाणा का। जब ताइक्वांडो खेलना शुरू किया तब पेरेंट्स सहमत थे कि वो भी जिद करके खेलना पड़ा? सर पहले तो स्कूलिंग था, खो खो खेला करती, मैं ऑलराउंडर ही रही हूँ वैसे। फिर मैंने फुटबॉल चेंज कर दिया, मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी। फुटबॉल के बाद फिर वही टीम गेम वाला आ गया, इंडिविजुअल मेरे को चाहिए था, तो टीम गेम के लिए किसी की शादी होगी +2 में, किसी को मतलब घर पे बिठा लिया, आगे कॉलेज लाइफ नहीं देखने दी। फिर मैं कॉलेज में आई, फर्स्ट ईयर में मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर में मैंने प्रैक्टिस की, सेकंड ईयर में मेरा नेशनल पार्टिसिपेट रह पाया, फाइनल ईयर में मैंने गोल्ड लिया। उस समय खेलने से नहीं रोका घर वालों ने? सर मैं बताती ही नहीं थी कि मैं खेलती हूँ, कॉलेज में प्रैक्टिस चलती थी। लगता था आपको रोकेंगे इसलिए लोग? हाँ, सिर्फ डर की वजह से मैं नहीं बता पाई। हाँ जी। लड़कियों को आज भी कहने की दूसरी बात है, वो फ्रीडम नहीं है जो लड़कों को है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचाएं हम बेटी? अपनों से ही बचा रहे हैं ना, क्यों बचानी है? अपने ही हमारा साथ नहीं दे रहे, अपने ही हमारा सहयोग नहीं कर रहे। आप सब भाई हैं, अंकल हैं, किससे बचाएं हम बेटी? और कम से कम लड़कियों को इतना तो सेल्फ डिफेंस के भी सभी गुण आने चाहिए कि किसी से बचाने की अगर नौबत भी आए तो चखा दो उसको।
मैं तो नहीं छोड़ती किसी को भी। सच बता रही हूँ, दिल्ली हॉस्पिटल में मैं अपोलो में मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ था फिंगर का, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वैसे ही कान पे फोन लगाया हुआ था मेट्रो में, और कोई बंदा था छीन के चला गया। उसका जाते जाते का मैंने पीछे से एक शर्ट पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया, खींच के एक किक दी थी जबड़े पे, उसने फोन वहीं पे रख दिया। और वो पीछे खड़ा एक पतला सा भाई, वो तो बोलते थे, अभी ब्लैक पिक पे हम गए थे कि भाई संभल के रहना, ताइक्वांडो की प्लेयर है। बाकी कुछ बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? नहीं। पक्का? तो कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहोगे आप जो हमारे अच्छा, एक बात बताइएगा मेरे को, पंजाब को ये कहते हैं कि नशे में विलीन हो चुका है 100%, क्या आप सहमत हो? 100% तो कुछ भी नहीं होता, कहने की बातें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा है या नहीं? 50 भी लगा लो आप, 50 भी नहीं होता ये, 50 भी नहीं होता। थोड़ा तो ये- बहुत है। 5% लोग नशा करने लग जाए, उनमें से एक मरने लग जाए, 1% बहुत होता है ना। बिल्कुल। मतलब एक लाख में 1000 बंदा मर जाए, या 1 लाख में 100 बंदा मर जाए तो बहुत लगेगा। बहुत ठीक है, लगेगा। हाँ, वो ऐसे- लेकिन हम इस बात को कैसे टिका सकते हैं कि भाई हमारे पंजाब के बारे में ऐसी अफवाहें क्यों फैल रही है? कौन बंद ਅੱਜ करेगा? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਵੱਕੜ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ। अच्छा 9 कोस और बुरा 100 कोस, वो तो हमेशा से ही चलता है। अच्छा वो क्या बोले अच्छा 9 कोस हाँ। और बुरा 100 कोस, अच्छी बातें बहुत कम दूर तक कम दूर पहुंच तक पाती ये हैं। हरियाणवी कहावत है ये। हाँ जी। ये अच्छी कहावत है भाई, वो अच्छी लगी बहुत। और ये सिर्फ कमी हमारी है, हम अच्छे को फैलाते नहीं कि फलाने का बच्चा इतना कामयाब हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। हम नीचे नीचे उसकी जड़ काटने की कोशिश करते हैं। जी सर। ये कमियां हम में, और बुराई की फलाने की छोरे ने ये कर दिया, गलत कर दिया, फलाने के छोरे ने कल शाम को दारू पी के इनकी माँ को पीटा, या फिर पेरेंट्स को किसी को भी कुछ कर दिया। गलत बातें बनाएंगे, पूरे गांव में सिर्फ 10 सेकंड में पहुंच जाएंगी। अच्छा कुछ करके आए, क्या पता 1 महीने बाद तो उन्हें पता ही चले। ये तो है। जेन्युइन है, रियलिटी है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 1 सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी जी प्लीज। जी जी। पॉलिटिकल ये मैटर है, आपने बताया, सरकार किसने बनाई है? नहीं, सरकार लोग बनाते हैं, लेकिन हमने लोग बनाई है ना। बिल्कुल मैं बताता हम वो हूँ, बातें बंद कर सकते हैं भाई, हमारे पंजाब के बारे में ये क्यों फैला रहे हैं, हम नशा करते ही नहीं। ऐसा नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। नहीं हो नहीं, पाता। practically आप नहीं हो में से पाता। कितने लोग नशा करते हो, सच्चाई बताना। दारू वाले बहुत होंगे, वो नशे में नहीं आता, छोड़ो। सर ये ट्रेंड में हो गया, कोई भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो ये बोलेंगे खाया पी कर नहीं है। चाचू यहाँ नहीं आएगा, जो दूसरा करने लगे वो यहाँ नहीं आएगा। चाचू कौन सा कह नशा है भाई, ये नॉर्मल है, कोई ना बुजुर्ग को नींद नहीं आ रही तो एक ढक दे दो। है पर ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा दूसरा मीनू जी, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਮੱਕੜ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ।
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਈ ਫੇਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ छपे हुए। भाई की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। हमें यहाँ से भी शायद कुछ नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलेंगी शायद ही, लेकिन कोशिश करो कि सिर्फ अच्छे पॉइंट्स ही हमें लेके जाने हैं, नेगेटिव को छोड़ दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ अपने लाइफ में, मेरी लाइफ में नेगेटिव बहुत आते हैं। अरे क्यों नहीं आते हैं नेगेटिव? हाँ जी। आपने बेटा जो नशे की बात छेड़ी है ना, तो पंजाबी बोलो। हाँ जी। तो हिंदी साढ़े अरकट क्यों होती है? मेरे को पंजाबी इतनी खास समझ नहीं आती। हाँ, तो वैसे मैं तेन बेनती करूँ कि हरियाणवी बोल ज्यादा, वो बहुत बढ़िया लगती है। मैंने हिंदी ये दी कहना जाए। भी था आपको कि 1 मिनट, हाँ बोलो जी, एक तो जी नशे की गल छेड़ी उन्हें ज्यादा मैं लंबी नहीं करनी चाहता, पर छोटी जी गल करनी चाहांगा कि अपने सज्जे खब्बे आले दुआले देखो कितना झोना पंजाब दे चप्पी चप्पी चुगिया पिया, कणक भी इसी तरह होंदी है, सो उन्होंने कोई ना कोई करता ही है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ये कोई नहीं देखता ये क्योंकि नशेड़ी। ये अच्छी बात है। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹਾਂ लिखा तो मैंने अभी तक कुछ नहीं। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ हाँ जी। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਸੀ ਹੈ, ਸਾਹਸੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਜੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਖੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ तेरा ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ सर मैं जरूर कोशिश करूंगी आपके कहने से। आपका हरियाणी बोलना बहुत अच्छा लगा। आमतौर पे क्या होता है हरियाणा में खास करके वो जो लोकल भाषा उसको छोड़ देते हैं, हाँ जी। वो ऐसा पेश करते हैं जैसे उनकी भाषा हिंदी है। सर हिंदी हमारे से तो हिंदी गांव से से प्रॉब्लम निकले नहीं है, हैं। हमें कोई हाँ जी, प्रॉब्लम नहीं हाँ है, जी। लेकिन गाँव की भाषा खत्म नहीं होनी चाहिए। सर जिसने हमको जन्म दिया, जिस मिट्टी से हम जन्मे हैं, उसी को भूल गए तो कौन सा जन्म है? किसके लिए हम जी रहे हैं? इसलिए आपको हरियाणवी में ही बोलना चाहिए बड़ी बड़ी मैं शहरों तो में भी। सर मैं तो अंग्रेजों को भी पागल बना देती हूँ हरियाणवी बोल के तो। तो सर ने एक अच्छी बात कही है भी। देखो कई बार होता है ना भी, पुराने ज़माने में आज से जो 60-70 की मूवीज़ थी, तो एक मैंने एक जगह में पढ़ा था भी कोई बंदा सुसाइड करने के लिए जा रहा था और उसने मूवी देख ली और वो इतनी पॉजिटिव मूवी थी भी, उसने अपना विचार ही चेंज कर दिया। तो ऐसे ही मतलब जैसे आपकी वो प्राप्ति है, तो मैं चाहूँगा भी ये अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो एक जो पॉजिटिव वाइब हमारे पास है, तो क्यों ना भी मतलब लोग हमें पढ़कर, देखकर, सुनकर, देखो हर जगह आप नहीं जा सकते, तो कई बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, तो उसकी किताब लिखकर भी आप अपने आप को, ये नहीं अभी खाली प्रमोट ही करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो डिप्रेशन में है या जो नेगेटिविटी में घुस चुके हैं, तो आप ऐसी चीज़ों से भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं। खासकर ऐसे लोग भी, मान लो कोई किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो अपंग हो गया या हैंडीकैप हो गया, तो वो जीना ही छोड़ देते हैं, तो उसको भी हम मतलब ये एक अच्छी चीज़ है। अभी मैं चाहूँगा भी कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो जरूर इसको ध्यान दीजिए। सर मैं खुद तो नहीं लिख पा रही, लेकिन साउथ सुडान से मेरे पास स्पेशल एक अंकल की कॉल आई है, मेरे फैमिलियर हैं वो कहते हैं कि आपकी जर्नी के ऊपर हम बहुत अच्छी बुक लिख रहे हैं बेटा, आपसे हम जो पूछेंगे वो आप बताते रहना। तू लिख सकती है सर बिल्कुल सिर झुका के आपकी बात में मानती हूँ, पक्का लिखूंगी। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਕਰ ठीक है सर, मैं जरूर लिखूंगी। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਕਰਿਆ
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਗਏ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਓ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 295 ਨੰਬਰ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਓ ਉਹ 295 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਥਰਡ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਹੈਨਾ। ये हमारी खूबी है, हाँ, खामी। और नहीं थोड़ी खूबी है, साडी खामी है। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ आपकी खामी है तो आप छोड़ो ना, हमारी नहीं तो खूबी छोटा है। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, दिल इतना बड़ा ना बनाओ कि कुछ ਮੈਂ खूबियों से ਤੁਹਾਨੂੰ दे ਕੋਈ दो। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸਤਾਬ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲਟਾਕ ਬਿਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। दूसरे के जैसे बनने की कोशिश मत करो। मैं हरियाणवी बोलती हूँ, एटलीस्ट 2 वर्ड तो आपको सिखा के जाऊँ, ऐसा एक पर्टिकुलर अपने आप को बनाओ। गणित तो मैं कौन सिखा सकती, लेकिन एक बात तो सिखा सकूँ, जमाइंडी लागा है। आप में हिम्मत हो ना, मैंने कम से कम भी एक अक्षर तो सिखा के भेज दो पंजाबी का। और मैं एक इतनी पंजाबियों के बीच में बैठी हूँ। बिल्कुल सही है। मीनू जी, आप हमारे गमक्कड़नामा मिल्ली में आए, आपकी यात्रा के बारे में हमने सुना तो बड़ा अच्छा लगा। तो चाहता हूँ भी इनकी बातों से बहुत सारे लोगों को आप एक इंस्पिरेशन हो, पॉजिटिव वाइब आप में है, तो हमें बड़ा, हम अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं भी कोई हस्ती हमारे बीच आज आई है। तो इसके आपकी प्राप्ति के लिए आपको सलाम, और आगे भी आपके जो आने वाले ट्रैक्स हैं जहाँ आपकी ज़िंदगी, उसके लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। आपने बोला कि पंजाबी का एक शब्द मुझे सिखा के भेजो, सो मैं आपके लिए बोलने लगा हूँ पंजाबी का शब्द। एक चोटी दी कुड़ी जिदे पिछे भी चोटी, उन्हें चढ़ ली चोटी। तो सम्मान दो जी, सम्मान दो। कितनी अच्छी बात कह दी आपने। देखो पूरे भारत में हम कहीं भी घूम लें, सिर्फ एक लास्ट टाइम छोटी सी बात कहूंगी मैं, पूरे भारत में कहीं भी घूम लें, हमारा जो पंजाब है, हमारा हरियाणा है, उस जैसी जन्नत कहीं नहीं मिलती किसी भी स्टेट में। उस इतने अट्टे कट्टे जवान नहीं, छोरियां की लंबी तकड़ी हाइट है, सुथरे हैं, सिर्फ हरियाणा और पंजाब में है, बाकी कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। और ये छाप हमें कैसे बनाए रखनी है, ऐसे ही तगड़े मुच्छों वाले हट्टे कट्टे नौजवान चाहिए। वो कैसे बनेंगे? नशा तो आप करते नहीं, वैसे ही हो, तो हमें बनने की जरूरत नहीं, हम सदा ऐसे ही रहेंगे। हमारा पंजाब जैसे था ऐसा ही रहेगा। बुरा है या सही है? तो मैं आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने इतना ध्यान से मुझे सुना, और कोई भी गलती हुई तो अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी समझ के माफ जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी, हुण आपां थोड़ा छोटा बलजिंदर साहब अपने वीर, ये मीनू वास्ते अपने वालों एक सन्मान चिन्ह ला लो, जां अपनी भैन नूं छोटी है ना एक गिफ्ट लैके आएगी।
ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਸਟਾਰਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੁਖੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕੋਈ ਜੇਮੀ ਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਧੂ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਆਪਣਾ ਹਲੇਰੀ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੋਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਓ, ਆ ਵੀ ਖਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਲੇਰੀ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਐਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਖੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਬੇਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੂਰ ਗਿਆ। ਸਡਨਲੀ ਭਾਲੂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਲੂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਤੀਰੀ ਨਿਕਲੀ ਖੂਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀ ਐਵਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਆਂ ਦਾ। धन्यवाद करती हूँ भाई आप सबका, और माता जी का, बाबा जी का, आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहन की, आपको इस फील्ड में, मेरे फील्ड में किसी को भी कुछ भी ज़रूरत हो, निःशुल्क हेल्प करूँगी। जहाँ तक मेरी अप्रोच है, कंपनी हायर करवानी है, कोर्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है, अगर इस फील्ड के बारे में किसी को भी कुछ पूछना है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के, सब भाइयों के साथ आपकी बहन खड़ी मिलेगी हमेशा के लिए। ਇੱਕ ਮੁੱਕੜਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ।